Hello everyone, my name is CMA Pankti Beni. Welcome to CMA modules. Today we will be taking topic from paper number 9, study note number 1, Operation Management Introduction. This chapter is important for theory. यहाँ पे कुछ 5-6 questions cover किए गए हैं theory questions. Mostly past papers देखें तो उसमें पूछा है एक या दो क्वेश्चंस वो लोग ने कवर किए हैं. उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. सो व्हाट इज़ ऑपरेशन मैनेजमेंट? ऑपरेशन मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. Now suppose if I go for telephonic conversation, that is also known as operation. If I have my food, that is also operation for me. So if I want to understand what is operation, operation is nothing but an act of performing some function. That is operation for me. What is management? Management is nothing but it is a process of dealing with people, controlling people, things, departments. So that is management for me. Okay, let us go for question number 2, that is operating system. What is operating system? Operating system means configuration of resources. Operating system means configuration of resources combined for provision of goods and services. मुझे goods और services देना है तो उसके लिए क्या हुआ है, मैंने configure किए हैं मेरे resources, मतलब combine किया है. configuration is nothing but combination. मैंने goods और resources, goods और services को combine किया है to perform my function. So operating system converts inputs using physical resources to create output, and it is a function of which the function of which is to satisfy customer wants. What is function of operating system? Function of operating system is to satisfy customer wants. Creation of goods or services involves transforming or converting inputs into outputs. Various inputs such as capital, labor and information are used to create goods or services using one or more transformation processes. So this is operating system for me. तो अगर एक और बार देखें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जहाँ पे मेरे रिसोर्सेज यूज़ कर मैं कन्फिगर कर रही हूँ. ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कन्फिगरेशन ऑफ रिसोर्सेज combined for provision of goods and services. I am configuring my resources for provision of goods and services. Operating system converts input using physical resources to create output, and the function of which is to satisfy customer wants. What does operating system do? It converts my inputs into outputs, and the function they do this to satisfy customer wants. Creation of goods and services involves transforming or converting inputs into outputs, and various inputs such as capital. क्या यूज़ करके हम कर रहे हैं, मेरा इनपुट क्या रहेगा, कैपिटल, लेबर, मनी, मशीन, ये मेरा कैपिटल रहेगा. ये यूज़ करके मैं क्या करती हूँ, मेरे जो गुड्स एंड सर्विसेज, मेरा जो रॉ मटेरियल है उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ इनटू एन आउटपुट, इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट. Now next question comes as objectives of operation management. So what all are the objectives of operation management? अगर मैं मेरा देखूँ ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशन मैनेजमेंट का अगर मुझे ऑब्जेक्टिव देखना है तो फर्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन और दूसरा है रिसोर्स यूटिलाइजेशन. हमेशा फर्स्ट मेरा जो रहेगा वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही रहेगा. कस्टमर इज किंग फॉर मी. कस्टमर के वांट्स सेटिस्फाई करना मेरा हमेशा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा. ऑपरेशन मैनेजमेंट का हमेशा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहेगा. रिसोर्स यूटिलाइजेशन ये मेरे लिए ऑलवेज एक ऑब्जेक्टिव ही रहेगा. ऑलवेज ये एक ऑब्जेक्टिव ही रहेगा. ओके. कस्टमर सर्विस to satisfy customer wants, to meet customer specification and satisfy them in first one is customer service. So customer service का क्या है, customer service का meaning है I want to satisfy customer wants. Second one is to meet customer specification and satisfy them in terms of cost and timings, thus to provide right things at right time at right price.
And third one is 3 aspects of customer service: specification, cost and timings, and are described in a little more detail. So first one is, इसके जो 3 aspects है क्या है? फर्स्ट तो वो लोग ने क्या बताया, कस्टमर वांट्स को सेटिस्फाई करना है. फिर कस्टमर स्पेसिफिकेशन, जो भी कस्टमर स्पेसिफाई किया है वो मुझे सेटिस्फाई करना है. कस्टमर ने क्या स्पेसिफाई किया है, उसका जो राइट टाइम पे उसे चाहिए, राइट थिंग चाहिए और राइट प्राइस पे चाहिए. ये जो थ्री स्पेसिफिकेशंस है कस्टमर के, वो मुझे मीट करना है. तो वो जो 3 स्पेसिफिकेशंस हैं उनको और डिटेली वो लोग ने एक्सप्लेन किया है हमें. सो फर्स्ट वन इज़ मैन्युफैक्चर, नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट, अनदर वन इज़ सप्लाई एंड फोर्थ वन इज़ सर्विस. तो ये हम कैसे करेंगे? बाय गिविंग देम, जैसे उन्होंने स्पेसिफाई किया है, जैसे रिक्वेस्ट किया है वैसा ही मुझे देना है. अगर मैं उस हिसाब से कर रही हूँ तो फिर मेरा कस्टमर का जो ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सर्विस का, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो मीट हो जाएगा. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ रिसोर्स यूटिलाइजेशन. मेरा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है. तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन में क्या है कि जो भी मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसे मुझे अच्छे से यूज़ करना है, फुल्ली ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है. सो फर्स्ट पॉइंट अंडर रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज, अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू यूटिलाइज रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर वांट्स इफेक्टिवली. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा रिसोर्स यूटिलाइजेशन में? फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, मुझे मेरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर वांट्स. दैट इज, customer service must be provided with the achievement of effective operations through efficient use of resources. Inefficient use of resources or inadequate customer services leads to commercial failure of an operating system. तो अगर मैं मेरे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो फेल हो जाएगा. मुझे मेरे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ करना है. सेकेंड पॉइंट जो है मेरा रिसोर्स यूटिलाइजेशन में, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड एसेंशियली विद यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मेरा फर्स्ट है सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर. सेकेंड पॉइंट जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन में है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज़ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम इफेक्ट फ्रॉम रिसोर्सेज और मिनिमाइजिंग देयर लॉस. मैक्सिमम ऑप्टिमली मुझे रिसोर्सेज को यूज़ करना है. जो भी रिसोर्सेज में से जो वेस्टेज है वो नहीं करना है. लॉस अगर हो रहा है तो उसे मिनिमाइज करना है. द एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज potential might be expressed in terms of proportion of available time used or occupied, space utilization, level of activity, etc. Each measure indicates the extent to which the potential or capacity of such resources is utilized. This is referred as objective of resource utilization. तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, मुझे मेरे रिसोर्सेज जो है उसे अच्छे से यूटिलाइज करना है. तो उसमें मुझे क्या वो लोग ने बताया कि जो भी रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमली यूज़ करना है, उसमें कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए. उसमें अगर लॉस हो रहा है तो उसे मिनिमाइज़ करो. फिर एग्जांपल्स दिए कि स्पेस यूटिलाइजेशन है उसे अच्छे से करो. अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी है तो उसे कैसे मुझे मैनेज करना है. Each measure indicates extent to which potential or capacity of such resources is utilized. This is referred as objective of resource utilization. Operation management is also concerned with achievement of both satisfactory customer service and resource utilization. Operation management is also concerned with achievement of both. जो भी ऊपर दोनों objectives mention किए वो दोनों मुझे चाहिए, customer satisfaction of customer service and resource utilization. Improvement in one will often give rise to deterioration to the other. अगर एक का improvement मैं करने गई, suppose customer service customer satisfaction, तो दूसरा deteriorate हो जाएगा. Often both cannot be maximized and hence a satisfactory performance must be achieved on both objectives. All the activities of operation management must be tackled with these two objectives in mind, and many of the problems will be faced by operation managers because of this conflict. Hence operation managers must attempt to balance these basic objectives.
ठीक है। तो ये मेरा रिसोर्स यूटिलाइजेशन था। क्या हमने देखा यहाँ पे कि फर्स्ट पॉइंट है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि मुझे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। फिर सेकंड क्या है कि मुझे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, वहाँ पे कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमली यूटिलाइज़ करना है। और जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे क्या बताया है कि ऊपर के दो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमेशा रिसोर्स यूटिलाइजेशन के प्राइमरी पॉइंट्स रहेंगे, और अगर एक को हम सेटिस्फाई करने गए तो दूसरा हमेशा डिटोरिएट हो जाएगा। तो हमें ऐसा करना है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन ये दोनों के बीच में बैलेंस रखना है। दोनों ऑब्जेक्टिव के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। नाउ कमिंग टू स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो मेरा स्कोप क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजमेंट को वो लोग ने बताया है कि वो क्या है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम हमारे इनपुट्स को लेके आउटपुट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज सो एज टू प्रोवाइड डिजायर्ड यूटिलिटीज टू द कस्टमर while meeting the other organizational objectives of effectiveness, efficiency, and adaptability. It distinguishes itself from other functions such as personnel, marketing, finance, etc. by its primary concern for conversion by using physical resources. तो ये ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है वो लोग ने बताया है। नेक्स्ट वो लोग हमें बता रहे हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट के और प्रोडक्शन मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो लोग ने लिस्ट किए हैं, लिस्ट डाउन किए हैं। तो इसे याद रखना एक मैंने इजी वे किया है। सो इट इज़ L P P P P Q M M। सो L P 4 M Q M square, L P 4 Q M square. So L stands for location of facility, P there are 4 P's here. So plant layout and material handling, product design, process design, production planning and control. Plant layout and material handling, product design, process design, production planning and control. Q stands for quality control, material management, maintenance management. So this way we can remember our functions of operation management and production management. Now coming to distinction between production management and operation management. So distinguish, I have tabulated over here. So production management जो है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, it is used for tangible products. जो भी tangible goods है मेरे उसको प्रोड्यूस करने में मेरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट यूज़ हो रहा है। ऑपरेशन मैनेजमेंट कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सर्विसेज। अगर मेरा इंटेंजिबल कुछ है तो वहाँ पे मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट यूज़ कर रही हूँ। प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो हिस्टोरिकल है, और ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो अभी दीज डेज ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो ले रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शंस। तो मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग एज कंपेटिटिव एडवांटेज। तो पहले अगर देखा जाए तो पहले इतना प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। मुझे एक यहाँ पे समझना है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस। मैन्युफैक्चरिंग इज़ ऑलवेज मैन मेड, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग वो स्पेलिंग खुद ही बोल रहा है कि वो मैन मेड है। प्रोडक्शन जो है वो नेचुरल है। यूजुअली हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को एक ही में यूज़ करते हैं, बट देर इज़ अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन बोथ दी वर्ड्स। So in the past production was considered to be like any other function. उसे इतना importance नहीं दिया जा रहा था. When demand was high and production capacities were inadequate, the concern was to somehow muster all inputs and use them to produce goods which would be grabbed by market. तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, कैपेसिटीज़ कम थे, प्रोडक्शन ज़्यादा था, डिमांड ज़्यादा था। बट अभी क्या है, सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है, कैपेसिटी ज़्यादा है, बट टुडे सिनेरियो इज़ कॉन्ट्रास्टिंग। प्लांट्स हैव एक्सेस कैपेसिटीज़, जितना चाहिए उससे ज़्यादा हम कैपेसिटी लेके काम कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन इज़ माउंटिंग एंड फर्म्स लुक एंड गेन कम्पिटिटिव एडवांटेज टू सर्वाइव एंड सक्सीड। Interestingly, production system offers vast scope to gain competitive edge and firm intend to exploit the potential. तो
वो लोग ने यहाँ पे हमें फ्यू फंक्शंस दिए हैं, TQM, टाइम बेस्ड कंपटीशन, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, ये यूज़ करके मॉडर्न डेज में हम यूज़ करके हमारा मैन्युफैक्चरिंग में कंपटेटिव एडवांटेज ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स दी है जैसे कि TQM, FMS, CIM, JIT, ये लर्न करना इम्पॉर्टेंट है। चांसेस है कि 1-2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, इधर फुल फॉर्म के फॉर्म में ही आ सकता है, और एल्स दे कैन इवन आस्क यू इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज MCQs। नेक्स्ट, सर्विस ओरिएंटेशन। पहले इतना सर्विस बेस्ड नहीं था, सर्विस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, बट दीज डेज सर्विस has a very good importance. As was stated earlier, service sector is gaining greater relevance these days. The production system therefore needs to be organized keeping in mind the peculiar requirements of service components. The entire manufacturing needs to be geared to serve intangible and perishable nature of services, constant interaction with clients or customers, small volumes of production to serve local markets, and needs to locate facilities to serve local markets. There is increased presence of professionals on production instead of technicians and engineers. ये क्या है? सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस ओरिएंटेशन मतलब क्या है? मोस्टली वो सर्विस बेस्ड है, सर्विस को दीज डेज अच्छा इम्पोर्टेंस दिया जाता है बिकॉज ऑफ दी मेंशन्ड पॉइंट्स। तो इंटेंजिबल एंड पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्विसेज, कांस्टेंट इंटरेक्शन विद क्लाइंट्स और कस्टमर्स, ये पॉइंट्स को अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कंपेयर टू पास्ट। नेक्स्ट वन इज डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स। तो पहले फैक्ट्री सेटअप जो होता था या ऑफिस सेटअप जो होता था, वहाँ पे इतना फैसिलिटीज़ नहीं था। अभी दीज डेज व्हाट वी कंसिडर इज फैक्ट्री और ऑफिस इज़ अ होम अवे फ्रॉम होम, so they have a very good setup. So protective labor legislation, environmental movement and gradual emergence of knowledge based organizations have brought total transformation in production system. ये सारे acts, ये सारे reforms ने क्या किया है? पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ गए प्रोडक्शन सिस्टम में। पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेबर का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया। Today's factories are aesthetically designed and built environment friendly. In fact, they are homes away from homes. Going to factory every day is no more excruciating experience. It is like holidaying at a scenic spot. A visit to ABB and L&T or Smith Clean and Bechman should convince the reader about the transformation that has taken place in the wealth creation system. Okay. Next one is small has become beautiful. So we have an author who in his famous book Small is Beautiful, he has mentioned that giant organizations should not be preferred. Instead, we should prefer small organizations. So many have gone against him and many have gone for large productions and large organizations. So ये हमारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन फंक्शंस। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ हो, कंफर्टेबल हो आप ये टॉपिक्स के साथ। अभी हम नेक्स्ट लास्ट टॉपिक कर रहे हैं विच इज़ रीसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये कंटेंट मैंने अंदर जो है वो मैंने गो थ्रू किया है, इट इज़ वेरी इजी, एक रीड किया तो भी समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे समवेयर अराउंड 12 पॉइंट्स है जो लर्न करना डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो मैंने क्या किया, इसका मैंने एक कोड वर्ड जैसा बनाया है, तो वो हमें हेल्प करेगा समझने के लिए, लर्न करने के लिए। सो ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ गुड प्रोडक्शन एंड TQM which is flexible. Global marketplace has a good production and TQM which is flexible. Technology helps in time reduction, worker involvement, re-engineering, environmental issues, corporate downsizing, supply chain management, lean production, supply chain management. तो ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए, अंडरलाइन किए है, वो यहाँ पे आपके 12 पॉइंट्स हैं। सो इट्स लाइक ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ गुड प्रोडक्शन एंड TQM विच इज़ फ्लेक्सिबल. टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन टाइम रिडक्शन, वर्कर इन्वॉल्वमेंट, री इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इशूज़, कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लीन प्रोडक्शन.
आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, कंफर्टेबल हो, सारे टॉपिक समझ में आए हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ये लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।